Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Kuratulan and my instructor name is Professor Sadab Javed. The topic today I am discussing is boron chemistry and its medical applications. Here are the contents of my presentation. First of all, I will discuss the introduction, then the properties of boron, uses of boron, boron for living and health and nutrition, boron neutron capture therapy, and factor affecting the boron neutron capture therapy. For introduction, boron is an element of group 13 having atomic number 5 and atomic mass 10.88811. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1. It means that it's having 3 electrons in the subshell. First boron was mentioned by a Persian chemist, and the first it was prepared by a French chemist in 1892, and the boron he prepared was 98% pure. Boron has many different applications, but the polyhedral heteroboranes are extensively used in medical applications. पॉलीहेड्रल हेट्रोबोरेन्स जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कम से कम एक जो बोरोन एटम है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है किसी और एलिमेंट के साथ। इसकी जगह कोई भी कार्बन एटम हो सकता है, कोई भी ऑक्सीजन हो सकता है। तो इस तरह रिप्लेसमेंट से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हेट्रोबोरेन्स कहा जाता है और उनकी मेडिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो बोरोन क्लस्टर्स हैं और उनके जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। जो बोरोन है इसकी अबंडेंस बहुत कम है। ये अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 टाइम्स लेस देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 to 10 टाइम लेस देन दैट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन होता है इन्वायरमेंट के अंदर। Now I will discuss the properties of boron. First of all, the physical properties. Boron exists in many allotropic forms. Allotropic forms are the different physical forms of any compound. The allotropic form of boron may be beta rhombohedral, beta tetragonal, and many other forms. The second physical property is boron are able to absorb large number of neutrons. This is the property because of which we use the boron in the treatment of cancer. They have a large absorbing capacity, so they can absorb a large number of neutrons. There are the two isotopes of boron, boron 10 and boron 11. Boron 10 is basically used in the treatment of cancer. Second one are chemical properties. Chemical properties, boron are not soluble in water and they does not react with the acids but they react with the oxygen in the air. Some basic properties of boron. The atomic number of boron is 5 and electronic configuration 2s 1s2 2s2 2p1 and atomic weight 10.811. Acid base properties shows that it forms higher valence oxides. Crystalline structure, its crystalline structure exists in rhombohedral form. It is a basically it is a non-metal and its physical state at room temperature is solid and it is weakly acidic. Here are the uses and occurrence of boron. Boron, it is used to make alloys and alloys are used to make magnets. These magnets are then further used in the preparation of microphones, headphones, loudspeakers and switches. It is also used in nuclear rods to control the fast moving electrons. Then it is used in the cancer treatment, particularly boron 10 as I discussed earlier. And if we look at its occurrence, it is found in many fruits. For example, it is present in peach and it is found in many in nuts, for example almond, and it is also present in vegetable, for example potatoes. There is a common quote about the boron that boron allows your body to work smarter, not harder. Here are the 12 benefits of boron. Boron for living medicines means that what is the importance of boron for living things? First of all, number one, improves brain function. बोरोन जो है हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। ये हमारी मेमोरी को जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसको इन्हांस करता है। उसके अलावा हमारा जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, मींस दैट जो हमारा कोऑर्डिनेशन रिफ्लक्स है, जो हमारा रिफ्लक्स सेक्शन है, उसको वर्क करने के लिए बोरोन जो है वो हेल्प करता है, इम्प्रूव करता है हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को। बोरोन हैज़ बीन शोन टू सपोर्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, मैनुअल डेक्स्ट्राइटी एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन. Number 2, reduces osteoarthritis symptoms.
This mighty mineral is able to control inflammation associated with bone mineral density that causes harmful osteoarthritis. Osteoarthritis क्या होता है? Osteoarthritis is a disease of bone in which the protective cartilage around the bones, जो प्रोटेक्टिव कार्टिलेज होता है बोन्स के अराउंड, वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो बोन्स हैं उनकी आपस में फ्रिक्शन होती है और बहुत से डैमेजेस हो सकते हैं। बेसिकली किस वजह से होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस? ये हमारी जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। तो जो बोरोन है उसके अंदर बहुत सी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ होती हैं। सो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ की वजह से उसको स्टॉप कर देता है बहुत से केमिकल्स के रिलीज़ होने को, जिसकी वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह बनते हैं। Number 3, it prevents and treats yeast infections with boric acid. Boric acid is a derivative of boron. So boric acid have many antimicrobial activity. Boric acid works to kill and inhibit harmful bacteria and the production of bacteria like yeast. बोरिक एसिड जो है इसको हम बहुत से इसके यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर वेजिनल कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर बोरिक एसिड को यूज़ करते हैं। उसके अलावा बोरिक एसिड जो है उसके कैप्सूल्स भी मिलते हैं, तो हम उनको हम मतलब अपनी डाइट के थ्रू भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से ये माइक्रोबियल इफेक्ट को कम कर देता है। उसके नंबर 4 है हेल्प्स मेटाबोलाइज इंसुलिन। जो बोरोन हेल्प्स योर बॉडी मेटाबोलाइज इंसुलिन एंड मे हेल्प रिड्यूस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन ऑप्टिमल प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल्स। जो बोरोन है हमारे ब्लड में जो है ये ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, क्योंकि इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, क्योंकि जो इंसुलिन है बेसिकली वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती है, और जो बोरोन है वो इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करता है। नंबर 5, हेल्प्स विद किडनी स्टोन्स। जो बोरोन है ये किडनी स्टोन्स को प्रिवेंट करता है, उनको बनने नहीं देता। यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन हैज़ अ बिग इम्पैक्ट ऑन किडनी स्टोन फॉर्मेशन एंड साइज। बोरोन रिड्यूसेस दिस एक्सक्रीशन लीडिंग टू लेस पेनफुल स्टोन्स। लेस पेनफुल स्टोन्स मीन्स दैट कि जो किडनी स्टोन्स है वो किस वजह से बनते हैं कि जो हमारी किडनी है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती और किडनी में से कैल्शियम एक्सक्रीट होता है। तो जो बोरोन है ये कैल्शियम की एक्सक्रीशन को रोकता है, जिसकी वजह से ये स्टोन बनने की प्रोबेबिलिटी को कम कर देता है, और अगर स्टोन बनते भी हैं तो वो लेस पेनफुल होते हैं और इजीली रिमूव हो जाते हैं। नंबर 6, सपोर्ट्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। बोरोन जो है वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हमें किसी जगह पे कोई भी वाउंड हो तो अगर हम वहाँ पे 3 मिलीग्राम बोरिक एसिड या फिर बोरोन का कोई भी 0.3% सोल्यूशन वहाँ पर डालें तो जो हीलिंग कैपेसिटी है वो बहुत इन्हांस हो जाती है। इसकी वजह से बोरोन हेल्प्स टू स्पीड अप मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक बोन ग्रोथ एंड वाउंड हीलिंग। नंबर 7, प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बोरोन जो है वो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। नंबर 8, बोरोन प्रिवेंट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी। इट इन कम्बिनेशन विद विटामिन D3 enhances the mineral content of bone. बोरोन अलोन enhances the maturation of growth cartilage. जो हमारी बोन्स के दरमियान कार्टिलेज है जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, उसको भी जो बोरोन है इन्हांस करता है विटामिन D3 की एफिलिएशन के साथ, और इस तरह से हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचाता है। नंबर 9 में इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल्स। इसी तरह जो बोरोन है वो एस्ट्रोजन लेवल्स को हाई कर देता है। एस्ट्रोजन लेवल्स को हाई करता है किसमें? पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में और हेल्दी मेन के अंदर ये एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज़ कर देता है। और जो एस्ट्रोजन लेवल है ये भी हमारी बोन्स की फंक्शनिंग के लिए और हमारी मेंटल फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 10 में इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन। ये मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी इंक्रीज़ करता है, जो कि बहुत से सेक्स रिलेटेड फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। It may prevent cancer. Studies have shown that boron inhibits the growth of some types of prostate and breast cancer cells. जो बोरोन है इसकी न्यूट्रॉन कैप्चर जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नंबर 12, सपोर्ट्स बोन डेंसिटी। बोन के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी, ये उनके फंक्शन को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये बोन डेंसिटी को मेंटेन रखता है। इसके अलावा जो बोन्स के दरमियान जो प्रोटेक्टिव कवरिंग कार्टिलेज होती है उसको भी मेंटेन रखने में बोरोन का जो है काफ़ी रोल है, जिसकी वजह से हमें ये स्ट्रॉन्गर बोन्स प्रोवाइड करता है।
Now, the role of boron in health and nutrition. फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन आर रिपोर्टेड टू बी रिच इन द बोरोन सोर्स. जो भी हमें फूड जो प्लांट ओरिजिन से मिलती है उनके अंदर बोरोन की हाई कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जांपल इन पीचेस है, पोटैटोज है, इनके अंदर बोरोन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है. अमेरिकन डाइट एसोसिएशन के मुताबिक जो डेली बोरोन का इंटेक है 1 to 3 मिलीग्राम पर डे पर पर्सन होना चाहिए. इसके अलावा हम किसी भी सैंपल में बोरोन को डिटेक्ट करने के लिए बोरोन की एस्टिमेशन के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं. द प्रेफर्ड मेथड फॉर द बोरोन एनालिसिस इज ICP-AES. ICP-AES stands for Inducively Coupled Plasma Mass Spectroscopy. It is the most widely used non-spectrophotometric method for the analysis of boron. It uses small volumes of samples, it is fast, and it applies to a wide range of materials. When ICP equipment is unavailable, calorimetric method can also be used. It is a spectrophotometric method. The boron vitamin, as it's commonly referred, it actually a trace mineral, as boron allows certain nutrients within your body to perform at their best. This is boron recommended daily intake. मतलब हमारी जो फूड है, हम जो भी फूड खाते हैं उनमें कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होती बोरोन की. तो या फिर हमें कोई इतनी प्रॉपर पता भी नहीं है कि कितनी हमें डेली बोरोन की जो है वो अमाउंट इनटेक करनी चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है इसके लिए एक चार्ट जो है अमेरिकन एसोसिएशन ने इन्होंने दे दिया है कि कितनी मतलब बोरोन की जो कंसंट्रेशन है वो एक हेल्दी ह्यूमन के लिए ज़रूरी है. डिफरेंट एज लिमिट के लिए डिफरेंट बोरोन कंसंट्रेशन है. फॉर एग्जांपल 1 to 3 ईयर्स का जो बेबी है उसके लिए 3 मिलीग्राम पर डे एसेंशियल है. 4 to 8 ईयर्स के लिए 6 मिलीग्राम पर डे. 9 to 13 ईयर्स के लिए 11 मिलीग्राम पर डे. इसी तरह जो वुमेन है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके लिए 17 to 20 मिलीग्राम पर डे. एंड वुमेन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, उनके लिए सबसे ज़्यादा बोरोन की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो फीडिंग कराती है उनमें जो कैल्शियम है वो सारा बोन से आता है, और जो बोरोन है वो बोन्स के कैल्शियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है. इसलिए उनको सबसे ज़्यादा जो है वो बोरोन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है टू मेंटेन देयर बोन कैल्शियम लेवल. Basic use of boron is in cancer treatment, and the method we used in the treatment of cancer is boron neutron capture therapy. It is abbreviated as BNCT. BNCT is an ideal technique to kill cancerous cells selectively without harming normal cells. BNCT जो है ये सिलेक्टिवली कैंसरस सेल्स को किल करती है और ये नॉर्मल सेल्स को कोई भी डैमेज नहीं करती. इट इज़ एन आइडियल टाइप ऑफ रेडिएशन थेरेपी since it is both physically and biologically targeted. So what is the principle of this method? Boron neutron capture therapy is a high linear energy transfer radiotherapy. It is used for the cancer treatment based on the nuclear capture and fission reaction that occur when boron 10 is irradiated with thermal neutrons to produce an alpha particle and a lithium nucleus. Basically इस टेक्निक में होता क्या है कि जो बोरोन का जो 10 वाला आइसोटॉप होता है उसके ऊपर थर्मल न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, जिसकी वजह से जो बोरोन 10 है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. उसके बाद उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है और वो फर्दर अल्फा पार्टिकल और लिथियम के न्यूक्लियस में उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और साथ 2.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है. जो अल्फा पार्टिकल है ये हाई एनर्जी हीलियम के न्यूक्लाई होते हैं और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है. तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये कैंसरस सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Now let's move to the procedure of BNCT. The basic procedure of BNCT consists of two steps. In the first step, the patient is injected with a tumor-localizing, non-radioactive boron-10 containing drug that has a high propensity to capture slow neutrons. First step में क्या करते हैं कि जो बोरोन 10 आइसोटोप है जो कि नॉन रेडियोएक्टिव होता है और ट्यूमर लोकलाइजिंग होता है, इसको पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इसकी स्लो न्यूट्रॉन जो है उसको कैप्चर करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है. In the second step, the patient is radiated with epithermal neutrons, which after losing energy as they penetrate tissues are absorbed by the boron 10, and the resulting nuclear capture and the fission reaction yield high energy alpha particles, thereby killing the cells. इसमें सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसके ऊपर एपिथर्मल न्यूट्रॉन्स जो है उनकी बम्बार्डमेंट कराई जाती है. उसकी जो एपिथर्मल न्यूट्रॉन्स है इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है और ये टिश्यूज़ के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी लो हो जाती है. फिर जो बोरोन 10 है इन लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद उसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसके रिजल्ट में हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है और अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं. ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये जो है कैंसरस सेल्स के अंदर ये जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. Here is the diagrammatic presentation of boron neutron capture therapy.
as it shows that thermal neutrons are bombarded on the tissue, and then boron absorbs these thermal neutrons, and then fusion reaction occur, and it results in the formation of a helium nucleus and a lithium nucleus. The helium nucleus penetrate in the cancer cell and destroy it, and along with this a high amount of energy released in the form of gamma rays. Now I will discuss the factors affecting the boron neutron capture therapy. There are the two major factors that affect BNCT. Number 1, boron 10 delivery agents, and number 2, neutron sources. Boron 10 delivery agents. The primary factors for the success of BNCT relies upon the boron 10 delivery agents. These delivery agents may possess some specific properties. For example, they should be soluble in water, because the 90 to 80% portion of our cell of our cytosol is water, and then they should be chemically stable, and they should be low toxic. For example, BPA4 dihydroboriphenylalanine and BSH sulfahydryl borane can be used are commonly used for boron 10 as boron 10 delivery agents. The second factor that affect the BNCT are neutron sources. There are two types of neutron sources are used for BNCT. Number 1, thermal neutrons, and number 2, epithermal neutrons. Thermal neutrons. They have approximately 0.025 electron volt energy, and their penetration range is 2.5 centimeter. As we can see, they have very low penetration range, so they are used for the superficial tumor treatment. ये सिर्फ उन ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं जो कि सुपरफिशियली होते हैं, मतलब जिनकी जो है विड्थ ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ ये उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं. Second ones are epithermal neutrons. They have 1 to 10,000 electron volt energy, and they have penetration range 3 to 6 centimeter. As shown, they have more penetration range, so they are used for the treatment of the tumor cells which are present deep inside the cell. Here is the schematic diagram for BNCT application. As there is a neutron generator which produce neutrons, and then beryllium target. These neutrons are bombarded on boron target, and this boron produce further alpha particles which are then directed on the patient, so these alpha particles help to treat the cancer cells. Thank you. This is all from my side. If you have any question, you can ask.